Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study Special Relief Act 1963। दोस्तों आज हम डिटेल तरीके से स्पेशल रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़रूरी होता है बैकग्राउंड को जानना, तो आज इस वीडियो में हम बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। See, the specific relief act is based on equity. It is based on equitable principles. Now I am going to discuss the history. जो equitable principles थे, इन equitable principles को कंसोलिडेट करके एक लॉ बना, that is Special Relief Act 1877. So guys, apart from this, there are various laws which we are still following from the pre-independence times, like Indian Contract Act, Indian Evidence Act, Negotiable Instrument, IPC. जरूरी नहीं है हर law change हुआ हो. Contract Act we are still following even till now. Laws which have been drafted at that time are so beautiful drafted कि आज के टाइम पे 2023 में भी वो perfectly applicable है. आज के डेट में जो लॉज बनते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट में हम देख लें कि कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, उसमें भी अभी एम्बिग्विटीज है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा इक्विटेबल प्रिंसिपल्स। अब इक्विटेबल प्रिंसिपल्स के जरिए ही हमें स्पेशल रिलीफ एक्ट 1877 मिला। लॉ कमीशन वाज गिवन द टास्क टू गो ऑल थ्रू द लॉज कि कौन से लॉ में क्या रिक्वायरमेंट्स है। लॉ कमीशन ने एक्सरसाइज किया। लॉ कमीशन जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो दोस्तों लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती। The Law Commission can give its suggestions. So by virtue of Article 372 Clause 1 of the Constitution, those laws were applicable even during the independence times. That's why we are following IPC, Contract, TPA and many more. This is the reason because Article 372 Clause 1 permits that. Guys, ये 3 different ways है. Legislature, Judiciary, Executive. Legislature makes the law, Executive implements the law, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए। अब जो लॉ कमीशन है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, तो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती है वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, क्योंकि वो चेंज करना या नहीं करना है वो लेजिस्लेचर का ही काम है। लेजिस्लेचर ही अमेंडमेंट्स कर सकता है। इसके बाद इंडिपेंडेंस के टाइम लॉ कमीशंस बनी थी, सबमिट हुई थी रिपोर्ट्स। जो लॉ कमीशन की 9th रिपोर्ट थी, इट वाज रिलेटेड टू स्पेशल रिलीफ एक्ट। दैट वाज रिलेटेड टू स्पेशल रिलीफ एक्ट, ओके। एंड हियर द लॉ कमीशन हैड सजेस्टेड मेनी चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारे चेंजेस सजेस्टेड थे। इसीलिए क्या हुआ, लेजिस्लेचर को लगा कि SRA 1877 को यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय अ न्यू एक्ट विच इज ऑफ 1963, SRA 1963. So this is what happened. So this is how we got SRA 1963. So now 1877 Act obviously it does not exist. It has now been replaced by the new Act 1963. अब दोस्तों ये SRA 1963 में एक अमेंडमेंट हुआ है 2018 में। Amendment is what? Like few portion has been amended, some section has been deleted, replaced, some new changes have been made. So that is what amendment is. एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हिस्ट्री पढ़ा पे वो क्लियर हो गया है। इक्विटेबल प्रिंसिपल होते थे पहले, जो किसी लॉ के फॉर्म में नहीं थे। जब ये लॉ के फॉर्म में आए थे तो 1877 का ये एक्ट बना था SRA। उसके बाद लॉ कमीशन सबमिट किया था अपना 9th रिपोर्ट ऑन SRA। लॉट्स ऑफ चेंजेस वर सजेस्टेड एंड मेड एंड द लेजिस्लेचर डिसाइडेड टू replace 1877 Act by the new Act of 1963. This has been amendment at once in the year 2018. That is very important. So SRA हमें 7 reliefs provide करता है. The first is recovery, second special performance, third rectification, fourth rescission, 5 cancellation, 6 declaration, 7 injunction. Now recovery of property क्या होता है? Recovery of property can be, I'm just giving an example. Suppose you take my register. You take my class registers. You are not returning back my registers. Register क्या है? Property है। देखो movable property है। देखो movable और immovable दोनों को ये cover करता है। Immovable property cover करता है section 5 और 6 को। Movable property cover करता है section 7 and 8 को। So now here, if you are not giving my register, then I can sue. I can file a suit against you. Specific relief क्या है कि मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं, मेरा register है वापस करो। Now immovable property, suppose I have allowed you to stay in my home, okay? Suppose I was not using my house, मेरा घर खाली था और मैंने रहने दिया अपने घर पे for 6 months. Now you are not vacating the house. आप घर मुझे हैंड ओवर नहीं कर रहे हो ना। What option will I have? What option will I have now? I will go to the court. I will file a suit against you for the recovery of property. So it is my immovable property now. Okay? तो ये होता है रिलीफ। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम नंबर 6 डिक्लेरेशन भी देखेंगे, ओके। तो सपोज आई अलाउड यू टू स्टे इन माई होम, मैंने आपको अपने घर पे रहने के लिए दे दिया 6 महीने के लिए। अब हुआ कि आपने तो ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ओनर तो आप हो, ऐसा हो सकता है ना।
प्रैक्टिकली होता है, यू स्टार्ट क्लेमिंग दैट यू आर द ओनर ऑफ द हाउस, आस्क द कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। इसके साथ साथ मैं कोर्ट से डिक्लेरेशन का भी रिलीफ मांगूंगी। आई विल प्रे टू द कोर्ट दैट इट शुड डिक्लेयर दैट he is not the owner, I am the owner. It should be declared that this person is not the owner, rather I am the owner of the house. So in my suit I will be praying for the recovery of property, and recovery of property के साथ साथ मैं डिक्लेरेशन भी मांगूंगी, ये डिक्लेयर किया जाए कि कौन इस घर का ओनर है। Now is specific performance. Suit और specific performance में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बाई अ हाउस एंड फॉर दैट हाउस यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनर ने कर दिया मना, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसे हम ब्रीच कहते हैं। एडवांस मनी दे दिया है, एडवांस मनी देने के बाद घर आपका हो जाता है, बट दिस ओनर स्टार्ट सेइंग दैट यू टेक योर मनी बैक, बट मैं घर नहीं बेच सकता तुमको, मुझे किसी और को बेचना है। सो दिस इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर आर 2 रेमेडीज अवेलेबल, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, SRA। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है सेक्शन 73 जिसमें आप डैमेजेस ले सकते हैं, और SRA में होता है सेक्शन 10 जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। बायर जो है वो कहता है कि नहीं मुझे घर चाहिए ही चाहिए, जिस वजह से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता है। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज द रेमेडी, ये एक रिलीफ है। रेक्टिफिकेशन, दोस्तों रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन। हमने अपने नोटबुक में SRA 2018 लिख दिया, तो उसे हम कट करके 1963 लिखेंगे ना, सो दैट इज रेक्टिफिकेशन। तो सेम थिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर किसी ने एक विल बनाई जिसमें प्रॉपर्टी का एड्रेस गलत लिख दिया, तो अब क्या होगा, उसको चेंज कराना पड़ेगा ना, करेक्शन कराना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ए रेक्टिफिकेशन। सेल डीड बन रहा है, अब किसी ने ग्राउंड फ्लोर के बजाय फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर लिख दिया जो उसका है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्शन होगा। अब आते हैं रेसेशन की तरफ। तो दोस्तों रेसेशन जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें हम कहते हैं कि ये एक्ट करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, मुझे घर चाहिए तो चाहिए। और रेसेशन में मैं कहती हूँ कि मुझे एक्ट नहीं करना है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मैं कह रही थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है और मुझे ये चीज़ करना ही करना है, अगला पार्टी कैसे मना कर सकता है। लेकिन रेसेशन में हम बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से बोलेंगे कि मैं बोलूंगी कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस नहीं करना है। तो वॉटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसे हम खत्म कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर हम खत्म करेंगे, कि कोर्ट में जाकर हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे और अगला पार्टी के बीच में है, तो मुझे ये चीज़ खत्म करना है, दिस, तो हम कोर्ट में जाके बोलेंगे कि दिस शुड बी टर्मिनेटेड, तो वहाँ पे रिलीफ आ जाएगा रेसेशन का। अब कैंसिलेशन क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसे कोर्ट ने रिसाइन, अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है, उसे कोर्ट ने रिसाइन कर दिया, स्टैंपिंग कर दे इसके ऊपर, हमें देख कर ही पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ कैंसिल हो चुका है। सो यहाँ पे दैट इज द रिलीफ ऑफ कैंसिलेशन। लास्ट है हमारा इंजंक्शन, जिसे हम कहते हैं स्टे ऑर्डर। स्टे सुना होगा आपने कि मैं कोर्ट से स्टे ले रहा हूँ। MCD ने बोला कि इस बिल्डिंग को तोड़ो, रेसिडेंट्स जो हैं वो कोर्ट गए, वहाँ पे उन्होंने स्टे ऑर्डर सीख किया, एंड द कोर्ट स्टेज दैट एंड सेड कि चलो अगली डेट तक टिल फॉर द ऑर्डर्स और फॉर द नेक्स्ट 3 months एज द कोर्ट में से द कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ कि चलो 30 days के लिए 90 days के लिए इस बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया जाएगा। सो दैट इज इंजंक्शन। अब ये जो रिलीफ्स हैं ये इक्विटी पे बेस्ड हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी रिलीफ्स हैं सारी की सारी डिस्क्रिशनरी रिलीफ्स हैं, बट आप बेयर एक्ट में देखोगे कि हर जगह पे मे लिखा हुआ है, जहाँ मे लिखा हुआ है वो यूज होता है डिस्क्रिशनरी रिलीफ के लिए। तो दोस्तों 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है 18 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी पहले डिस्क्रिशनरी रिलीफ था, बट 2018 अमेंडमेंट के बाद डिस्क्रिशनरी रिलीफ मैंडेटरी रिलीफ बन चुका है। बेयर एक्ट में हम देख सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी रिलीफ में शैल लिखा हुआ है, लेकिन बाकी जितने हैं उन सब में मे लिखा है। तो ये डिफरेंस है 2018 का, ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। SRA इज नॉट एग्जॉस्टिव, वाई, मतलब उसको दूसरे एक्ट्स में भी रिलीफ्स मिलेंगी। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अदर लॉज भी हैं जो इसमें जुड़ते हैं। तो आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेदर SRA इज सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ जो होता है वो राइट्स क्रिएट करता है, और जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो आप लायबल हो, इट्स माई राइट, यू विल बी लायबल। सो इट इज़ द राइट विच इज़ क्रिएटेड बाय द सब्सटैंटिव लॉ, इट इज़ गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो लॉ राइट्स बनाता है वो होता है सब्सटैंटिव, और इस राइट्स को इन्फोर्स कैसे किया जाता है वो है प्रोसीजरल लॉ।